Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 6 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number 6, getting started with programming. Let's move on to the introduction. Algorithms are the fundamental building blocks of problem solving in computer science. Algorithms क्या है? ये एक fundamental building blocks हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंप्यूटर साइंस में. दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स. ये क्या करते हैं? जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं इसे ब्रेक डाउन करके जो है ये छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं. लेट्स मूव ऑन टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. After learning this chapter, students will be able to know. इस chapter को पढ़ने के बाद students क्या समझेंगे? They will understand basics of algorithms and flowcharts. They will understand the importance of algorithms and flowcharts for computer programming, and they will also learn about computer language and types of language translators. So ये important points हैं. ये सारी चीज़ें हम इस chapter को पढ़ने के बाद सीख जाएंगे. Let's move on to the conversation between Meera and Hina. So Meera says, "Hey Hina, I have always wondered how do computers know what to do?" मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि कंप्यूटर्स को पता कैसे चलता है उन्हें क्या करना है. Hina says, "Great question, Meera. Computers know what to do through programs." कंप्यूटर्स को पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए प्रोग्राम्स के थ्रू. Meera says, "Programs? What are programs?" Now Hina says, programs are a set of instructions that tell a computer how to perform tasks. So programs क्या है? ये एक set of instructions हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि काम को कैसे करना है. These programs are also called software, और इन programs को software भी कहा जाता है. Now Meera is saying, I see. So who creates these programs? इन प्रोग्राम्स को बनाता कौन है? Hina says programs are created by computer programmers और software developers. प्रोग्राम्स को कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाते हैं. They write lines of code using programming languages. So programming languages की मदद से ये lines of code लिख पाते हैं. Now Meera is saying, but how do programmers write these instructions? ये जो instructions हैं इन्हें programmers कैसे लिख पाते हैं? Hina is saying programmers use a combination of algorithms and flowcharts to design these instructions. Programmers क्या करते हैं? ये algorithms और flowcharts को जो है इनका जो combination है उसे use करते हैं इन instructions को design करने के लिए. Now Meera is saying, Hina, please tell me more about algorithms and flowcharts. तो चलो मुझे इन दोनों के बारे में और ज़्यादा बताओ. Now Hina says, okay Meera, let's get started. तो चलो पढ़ते हैं क्या है algorithms and flowchart. So computers work by following instructions provided by users through something called programs. So ये जो computers हैं ये क्या करते हैं? फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को जो भी यूज़र उन्हें प्रोवाइड करता है. किसके थ्रू? प्रोग्राम्स के थ्रू. दीज प्रोग्राम्स आर लाइक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस. ये जो प्रोग्राम्स है ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की तरह होते हैं जो कि गाइड करते हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करने में कुछ टास्क को, ऑपरेशंस को विथ द गिवन डेटा, जो भी डेटा है उसके साथ. कंप्यूटर्स क्या करते हैं? फॉलो करते हैं एंड इनपुट प्रोसेस आउटपुट मीन्स IPO साइकिल टू कंप्लीट अ टास्क. कंप्यूटर्स क्या करते हैं? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये इसे हम IPO साइकिल कहते हैं. इसको जो है ये फॉलो करते हैं ताकि ये एक टास्क को पूरा कर पाएं. अब क्या है ये सारी चीज़ें? लेट्स सी. सो पहले आता है हमारा इनपुट. ये क्या है? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इस फेज में. अब इसमें क्या होता है? जो कंप्यूटर है एक्सेप्ट करता है इनपुट को यूजर से. यूजर मीन्स हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं कंप्यूटर को. दिस इनपुट कुड बी टेक्स्ट, नंबर्स,
commands or even signals from sensor. So ये जो इनपुट है ये टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है, और तो और ये कोई सिग्नल हो सकता है. एग्जाम्पल टाइपिंग ऑन कीबोर्ड. नेक्स्ट है प्रोसेस. अब प्रोसेस में क्या होता है, आफ्टर रिसीविंग द इनपुट लेने के बाद जो कंप्यूटर है वर्क करता है इस डेटा पे, जो भी डेटा हमने डाला है उसमें अकॉर्डिंगली वर्क करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग. एंड दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कैलकुलेशंस, डेटा मैनिपुलेशन, comparisons and other logical operations. अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में कैलकुलेशन हो सकता है, डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है डेटा का, या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस का यूज हो सकता है. एग्जाम्पल है यहाँ पे एडिंग टू नंबर्स. अब जो है जब इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, अब आता है आउटपुट. सो वंस द प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, जब एक बार ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, कंप्यूटर हमें जो है फाइनल रिजल्ट देता है बेस्ड ऑन द प्रोसेस्ड डेटा. सो जो भी डेटा को प्रोसेस किया गया उसके बेसिस पे ये हमें आउटपुट देता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रोग्राम्स सर्व एज द कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स. तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम है वो क्या करते हैं, वो सर्व करते हैं एक कम्युनिकेशन ब्रिज के रूप में. ये हमें हेल्प करते हैं जो कि ह्यूमंस और कंप्यूटर्स के बीच में है. नाउ एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोग्राम्स. सो नए प्रोग्राम्स को क्रिएट करने में ये दोनों जो चीज़ें हैं, एल्गोरिदम्स कह लो या फ्लो चार्ट कह लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है. These tools help programmers think step by step and solve problems easily. अब ये जो tools है ये help करते हैं प्रोग्रामर को प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में और उसे सॉल्व करने में. Let's move on to algorithm, जो कि हमारा अगला टॉपिक है. So algorithm क्या है, ये है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो बताता है कि कैसे किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. ये जो है एक सीक्वेंस है स्टेप्स का, नीडेड टू परफॉर्म अ गिवन टास्क, जिसकी जरूरत होती है एक दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए. देयर आर अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर by breaking them into smaller steps and executed in a sequential order. So यहाँ पे क्या है, अलग अलग आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन है या जो उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है ब्रेक करके छोटे छोटे स्टेप्स में लिखा जाता है और एक सीक्वेंस में लिखा जाता है कि अब ये करना है, फिर ये करना है, फिर कुछ और करना है. They are used in various fields such as mathematics, computer science, engineering and everyday decision making. इन सब जगहों पे इसे यूज किया जाता है. Algorithms can be represented in various ways. Algorithm को अलग अलग तरीके से हम represent कर सकते हैं, such as English, like written instructions, pseudocode और flow charts. तो इन फॉर्म में हम इसे जो है लिख सकते हैं. प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं एल्गोरिदम को किस लिए, डिजाइन करने के लिए लॉजिक और स्ट्रक्चर को ऑफ देयर प्रोग्राम्स बिफोर राइटिंग द रियल कोड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो अपना रियल कोड लिखने से पहले जो प्रोग्रामर्स हैं इन एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं ताकि जो भी स्टेप्स है उसे लाइन बाय लाइन वो लिख सके. एल्गोरिदम्स क्या होता है, इसमें जो आपको सिंपल स्टेप्स मिलेंगे दैट कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय यूजर, जिसे आसानी से यूजर समझ सकता है. एग्जाम्पल दिया गया है, लेट अस लुक एन एल्गोरिदम ऑफ मेकिंग वेजिटेबल सैंडविच. तो यहाँ पे एक एल्गोरिदम दिया गया है जिसमें हम एक वेजिटेबल सैंडविच बना रहे हैं. सो लेट्स लुक एट द एल्गोरिदम. सो फॉर एग्जाम्पल द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ मेकिंग वेजिटेबल सैंडविच will be as follows. स्टेप बाय स्टेप अगर हमें वेजिटेबल सैंडविच बनाना है तो पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं. तो स्टेप 1 कहता है
हमें 2 स्लाइस लेने हैं ब्रेड के, टोमेटो स्लाइसेस लेने हैं, कुकुम्बर स्लाइसेस लेने हैं, अनियन रिंग्स लेने हैं और ग्रीन चटनी लेनी है। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या कह रहा है, हमें स्प्रेड करना है ग्रीन चटनी को ऑन 1 और बोथ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के या तो एक स्लाइस पे या दोनों पे। नाउ स्टेप 3 क्या कह रहा है, प्लेस द टोमेटोज, कुकुम्बर एंड अनियन रिंग्स ऑन 1 स्लाइस, एक स्लाइस पे ये सारी चीजें रख दें। फिर स्टेप 4 कह रहा है स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ चाट मसाला एंड सॉल्ट, अब चाट मसाला और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप, कवर इट विथ सेकेंड स्लाइस ऑफ ब्रेड, अब जो दूसरा स्लाइस है उससे उसको ढक देंगे। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप कहता है कट द सैंडविच इन हाफ, अब सैंडविच को हमें हाफ में कट करना है। और अब 7th स्टेप में क्या हुआ, जो डिलीशियस हमारा वेजिटेबल सैंडविच है वो रेडी हो गया खाने के लिए। सो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, मेकिंग वेजिटेबल सैंडविच। So this step by step procedure to make a sandwich can be called as an algorithm. So ये जो steps लिखे हैं step by step जो है हमने demonstrate किया है कि कैसे हमें एक vegetable sandwich बनाना है, इसे ही हम algorithm कहते हैं। Now let's move on to the characteristics of a good algorithm. क्या क्या characteristics होते हैं, पहला है precision, means every step should be clear and understandable. जितने भी steps हैं वो clear होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। फिर है यूनिकनेस, जो रिजल्ट है हर एक स्टेप का वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस स्टेप, जो भी जो है नेक्स्ट स्टेप है वो प्रीवियस स्टेप का जो है अगला स्टेप होना चाहिए। नेक्स्ट फाइनाइटनेस, द एल्गोरिदम शुड एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एल्गोरिदम एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद खत्म होना चाहिए। फिर आता है इनपुट, एंड एल्गोरिदम शुड हैव वेल डिफाइंड इनपुट टू वर्क ऑन, एल्गोरिदम में एक वेल डिफाइंड इनपुट होना चाहिए जिस पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आउटपुट, एन एल्गोरिदम शुड प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट फॉर ऑल वैलिड इनपुट्स, एल्गोरिदम को जो है प्रोड्यूस करना चाहिए करेक्ट रिजल्ट हर एक वैलिड इनपुट के लिए। Now let's learn about how can we write an algorithm. Writing an algorithm is our next topic. So writing an algorithm means creating a list of step by step set of instructions. So algorithm लिखने का मतलब है कि एक list of steps बनाना जिसमें instructions हो किसी भी problem को solve करने की और achieve a particular goal या फिर किसी goal को पाने की। Now look at some examples, यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं। So algorithm 1 जिसमें हमें क्या करना है, ऐड करने हैं 2 numbers को। Step 1 कहता है पहले हमें start करना है। Step 2 में हमें we have to take 2 numbers as input, 2 नंबर लेने हैं। Example हमने यहाँ पर 10 और 12 को लिया है। Now step 3 क्या है, calculate the sum of 2 numbers. Sum is equal to 10 plus 12. Now answer is 22. Now step 4 is print the result which is sum 22, and then step 5 is stop. Similarly there is another algorithm जिसमें we are finding the greater of 2 numbers, 2 numbers में से जो भी बड़ा है उसको हम ढूंढ रहे हैं। So पहला step है start लिखना है हमें, फिर हमें लिखना है input 2 numbers of A and B। अब हमें जो है ये फॉर्मूला डालना है A इज ग्रेटर देन B, देन गो टू स्टेप 5। अगर A जो है B से बड़ा है तो स्टेप 5 पे जाएं, प्रिंट A एज ग्रेटर, और एल्स कमांड हमने यहाँ पे यूज किया है, एल्स प्रिंट B इज ग्रेटर, नहीं तो क्या प्रिंट करना है, B ग्रेटर है, एंड देन गो टू स्टेप 6। और अगर ऐसा होता है B ग्रेटर है तो हमें सीधे स्टेप 6 पे जाना है जो कि है स्टॉप। सो ये थे हमारे 2 एल्गोरिदम्स। Now let's move on to let's summarize. Complete the algorithm for finding the division of 2 numbers. यहाँ पे एक algorithm दिया गया है, आपको इसे complete करना है जिसमें 2 numbers को आपको divide करना है। So this you have to do yourself. Now let's move on to flow chart. A flow chart is a pictorial representation of steps for solving a particular problem. किसी भी problem को solve करने के लिए जो है नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे जाते हैं पिक्चर के फॉर्म में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में।
It can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm. हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी एल्गोरिदम हमने लिखा है उसको एक डायग्राम के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर रहे हैं. It breaks down an algorithm into individual steps. ये क्या करता है, एल्गोरिदम को जो है डिवाइड करता है इंडिविजुअल स्टेप्स में और शो करता है कैसे जो है ये जो स्टेप्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं. To create a flowchart, different shapes are used. फ्लोचार्ट को बनाने के लिए हम अलग अलग शेप्स को यूज करते हैं that are connected with each other, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. फ्लोचार्ट make it easier to plan and explain computer programs. फ्लोचार्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं. Now let us describe some of the shapes with their symbols as follows. तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कुछ फ्लो चार्ट के शेप्स के बारे में, उनके सिंबल्स के साथ और उनका डिस्क्रिप्शन. तो पहला आता है हमारा टर्मिनल बॉक्स, जिसे हम स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स भी कहते हैं. ये होता है ओवल शेप का. इट इज यूज इन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट. सो फ्लो चार्ट को शुरू और ख़त्म हम इस सिंबल से करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट या फिर आउटपुट बॉक्स. ये ऐसा दिखता है एंड इसे जो यूज़ किया जाता है टेकिंग इनपुट एंड गिविंग आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट. इनपुट जो है लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए इसे यूज़ किया जाता है. फिर आता है हमारा प्रोसेस बॉक्स जो कि रेक्टेंगुलर है. इसे यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए. इसमें प्रोसेसिंग का काम इसमें ही होता है. कैलकुलेशंस या फिर एक्शंस इसमें किए जाते हैं. फिर आता है हमारा डिसीजन बॉक्स एंड इट इज़ यूज फॉर चेकिंग एनी कंडीशन. कंडीशन को चेक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट में और इसका आंसर आपको येस नो या फिर ट्रू फॉल्स में मिलेगा. फिर आता है हमारा फ्लो लाइंस. ये फ्लो लाइंस बताते हैं कि अगला स्टेप कौन सा है. सो ये जो एरोज हैं ये इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन, किस तरफ जो है प्रोग्राम हमारा फ्लो कर रहा है. फिर आते हैं हमारे कनेक्टर्स. ये है हमारा कनेक्टर. इसे यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट टू अनदर. मीन्स अगर फ्लो चार्ट हमारा एक पेज में हमने लिखा है वो वहाँ पे पूरा नहीं हुआ तो हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं उस पेज पे. फिर अगले पेज को हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टर के साथ जो ये बताता है कि जो हमारा फ्लो चार्ट है वो अगले पेज तक कंटिन्यू हो रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू गाइडलाइंस फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट को बनाने के लिए कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, लेट्स सी. So when creating a flowchart, follow these rules. ये जो rules दिए गए हैं इन्हें follow करना होगा जब हमें flowchart बनाना है. Keep it simple and clear. Simple और clear होना चाहिए flowchart. Keep it neat and organized. ये जो हमारा flowchart है ये neat होना चाहिए, organized होना चाहिए. Draw the flowchart from top to bottom. flowchart जो है हमारा वो ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए. Avoid lines crossing each other. तो ऐसा नहीं कि हमने एक फ्लो लाइन इधर बनाई दूसरी लाइन इधर से क्रॉस करते हुए जा रही है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें. नेक्स्ट, एंश्योर दैट ओनली वन फ्लो लाइन एंटर्स अ डिसीजन बॉक्स. इस बात का ध्यान रखें कि जो डिसीजन बॉक्स है उसमें सिर्फ एक ही फ्लो लाइन आए. नेक्स्ट, मेक श्योर योर फ्लो चार्ट हैज़ क्लियर स्टार्ट एंड स्टॉप. हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्लो चार्ट है उसमें स्टार्ट और स्टॉप दोनों ही है. If your flow chart becomes too complicated, अगर आपका जो flow chart है वो बहुत ज़्यादा complicated बन जाता है, it is better to use connectors. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस समय connectors use करना चाहिए. Now let's move on to creating a flow chart. कैसे हम flow chart को create कर सकते हैं. So let's see how to create a flow chart. Calculate the sum of two numbers. दो numbers का sum हम निकाल रहे हैं. तो start box बनाया, फिर हमने दो नंबर्स को लिया ए एंड बी, फिर हमने ऐड किया इन दोनों नंबर्स को, डिस्प्ले किया रिजल्ट एंड देन स्टॉप. सो आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ भी जा रहा है. डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट. क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. सो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो है ये दो डिफरेंट एसेंशियल टूल्स हैं प्रोग्रामिंग में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में. ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. दोनों ही हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनको छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करके.
एल्गोरिदम क्या करता है, प्रोवाइड करता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देता है एल्गोरिदम। लेकिन जो फ्लो चार्ट है ये क्या करता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है इन इंस्ट्रक्शंस का इन अ डायग्राम फॉर्मेट, एक डायग्राम के फॉर्मेट में। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड, एल्गोरिदम क्या है, ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है रिटन इन सिंपल इंग्लिश, जिसे हम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं। लेकिन जो फ्लो चार्ट है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन्हीं स्टेप्स का। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट मीन्स एल्गोरिदम एंड विजुअल मीन्स फ्लो चार्ट helps in understanding and building complex programs more effectively. So इस दोनों की मदद से जो है प्रोग्राम, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसे और भी ज़्यादा आसानी से हम शो कर सकते हैं। Now let's move on to solving problems using algorithms. Algorithms की मदद से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। So let's imagine that you are driving and suddenly the car starts making a strange noise. इमेजिन करते हैं कि हम कार को ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है कार से। द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू फिगर आउट फ्रॉम वेयर द नॉइज इज कमिंग। सो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नॉइज़ कहाँ से आ रही है। इफ़ यू कैन नॉट फिक्स इट योरसेल्फ, अगर आप खुद से उसे ठीक नहीं कर सकते, अ गुड आइडिया इज टू टेक इट टू अ मैकेनिक, उसे एक मैकेनिक के पास ले जाएं। The mechanic checks the problem to identify the source of the noise. मैकेनिक क्या करता है, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, कहाँ से वो नॉइज आ रही है उसके सोर्स को जानने की कोशिश करता है, डिसाइड करता है कि कैसे उसे फिक्स करना है, फिर उसे रिपेयर करता है और जिसके बाद वो जो नॉइज है वो आना बंद हो जाती है। ये जो अबव एग्जाम्पल है ये बताता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें आपको जो है कई बार कई सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है एक के बाद एक। व्हेन प्रॉब्लम्स आर इजी, जब प्रॉब्लम आसान होते हैं, दे कैन बी सॉल्व क्विकली, उन्हें आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बट लेकिन जब प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेटेड हो तो क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप मेथड को यूज़ किया जाना चाहिए उस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन पाने के लिए। That is why we use step-by-step methods like algorithms and flowcharts, और इसीलिए हम algorithms और flowcharts को use करते हैं। Let's move on to computer languages. So humans communicate with each other through spoken language. हम humans एक दूसरे से spoken language की मदद से बात करते हैं, written word से बात करते हैं, facial expression से बात करते हैं और जेस्चर से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमंस यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स डज नॉट अंडरस्टैंड आवर वर्ड्स डायरेक्टली, कंप्यूटर हमारी बात को नहीं समझ सकते। सो टू इंटरैक्ट विद देम इफेक्टिवली वी रिक्वायर अ स्पेशल वे टू शेयर इनपुट्स एंड अंडरस्टैंड द आउटपुट्स। तो उनसे बात करने के लिए हमें जो है एक स्पेशल तरीका चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होते हैं एंड आउटपुट्स चाहिए होते हैं। अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए हमें उनमें इनपुट करना होता है और उनकी बात को समझने के लिए हमारे पास आउटपुट होना चाहिए। दे यूज अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। अब ये जो कंप्यूटर है ये बाइनरी लैंग्वेज को यूज करते हैं जो कि एक स्पेशल लैंग्वेज है। एंड बाइनरी लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ 2 सिंबल्स। बाइनरी लैंग्वेज 2 सिंबल से बना हुआ है, 0 and 1। इन बाइनरी these 2 symbols represent on and off और कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या होता है, ये जो 2 नंबर्स हैं इनका मतलब होता है ऑन और ऑफ। अब जब हम इन कोड को यूज़ करते हैं हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं कंप्यूटर से। हाउएवर रिमेंबरिंग ईच इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी कैन बी डिफिकल्ट। हर एक इंस्ट्रक्शन को बाइनरी लैंग्वेज में समझना, उसे याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो ये जो चैलेंज है इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को है उसे क्रिएट किया गया है, विच मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू टॉक टू कंप्यूटर्स विदाउट नीडिंग टू रिमेंबर ऑल दोज जीरोज एंड वंस। सो जिसमें क्या होता है, बिना जो है जीरोज और 1 की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं बिना उस लैंग्वेज को याद किए। सो मेजरली क्या होता है, यहाँ पे 2 मेन कैटेगरीज हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के, जिन्हें हम लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सो पहला आता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज।
सो ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के, और इन्हें जो है हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश और एनी अदर ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर्स जो है इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, वो दूसरे ह्यूमन लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये जो कंप्यूटर्स है ये लो लेवल लैंग्वेज को ईजिली समझ लेते हैं। Their primary function is to interact with the hardware of the computer, और इस लैंग्वेज का जो मेन फंक्शन है वो है हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने का। फिर आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। सो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है ह्यूमंस के द्वारा रीड करके और लिख के। These languages are यूज़र फ्रेंडली, इन्हें इस लैंग्वेज को हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं क्योंकि जब इसे कंपेयर किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज से तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। दे यूज़ नेचुरल लैंग्वेज एलिमेंट्स, इसमें आपको नेचुरल लैंग्वेज एलिमेंट्स मिलेंगे जो क्या करता है इसे काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है प्रोग्रामर्स को समझने में। दे लुक मोर लाइक इंग्लिश और मैथ्स, ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश और मैथ्स की तरह दिखाई देती है, इसलिए समझना काफ़ी आसान है। एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर पाइथन, जावा, C++ एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स। द कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। ये जो सोर्स कोड है इसे जो है कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में एंड इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। नाउ लेट्स लर्न अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर। In computer programming, we use high level language to give instruction to computers. कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर को। बट कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी और मशीन लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज को समझ पाते हैं। सो टू कम्युनिकेट वी नीड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें हाई लेवल लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट करना होता है मशीन कोड में। दिस कॉन्वर्सेशन इज डन यूजिंग स्पेशल प्रोग्राम्स कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, और ये जो काम है ये कौन करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स करते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, 3 तरीके के ट्रांसलेटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में। पहला है आपका असेंबलर, फिर है कंपाइलर और थर्ड है इंटरप्रेटर। सो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर जो है ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, एंड असेंबली लैंग्वेज यूजेस निमोनिक्स एंड सिंबल्स। ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें आपको निमोनिक्स और सिंबल्स मिलेंगे टू रिप्रेजेंट मशीन लेवल ऑपरेशन, जिसमें हम मशीन लेवल ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है ऐड एडिशन के लिए, मूव फॉर मूविंग डेटा एक्सेट्रा। दे आर इजी टू रीड देन बाइनरी, बाइनरी के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा आसान है पढ़ने में। फिर आता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम्स को जो कि लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और इन्हें ये कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। इट टेक्स द एंटायर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या करता है, जितना भी प्रोग्राम जो लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में ऑल एट वंस, एक बार में। इफ देयर आर एरर्स इन द कोड, अगर कोड में एरर्स हैं, द कंपाइलर प्रोवाइड्स एरर मैसेजेस। तो कंपाइलर क्या करता है, एरर मैसेज देता है दैट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम एंड इंडिकेट द लाइन नंबर वेयर द एरर इज फाउंड। सो ये क्या करता है, मैसेज को जो है अच्छे से पढ़ता है, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है और उसे जो है लाइन नंबर पे इंडिकेट कर देता है जहाँ पे भी एरर मिलती है। फिर आता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, इट इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो ये भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखे गए हैं उसे मशीन कोड में ये जो है ट्रांसफर करता है। इट रीड्स अ लाइन ऑफ हाई लेवल कोड एंड ट्रांसलेट्स
it into machine code. So जो भी लिखा हुआ है हाई लेवल कोड में उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है उसे लाइन बाय लाइन. As the interpreter analyzes every line one at a time, it is slower than a compiler. क्योंकि ये जो इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन काम करता है तो ये काफ़ी स्लो है कंपाइलर के कंपैरिजन में. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज. You have to compare high level languages with low level languages. So this you have to do yourself. Now let's move on to let's reboot. Computers follow an input process output means IPO cycle to complete a task. Next, an algorithm is set of rules and instructions for solving a problem. Flowchart is a pictorial representation of the steps. There are two types of computer languages. दो तरीके की computer languages हैं, low level and high level languages. Assembler, compiler और interpreter क्या है? These are the types of language translators. A translator is a computer program. Translator एक computer program है जो क्या करता है? Translate करता है high level program को machine code में. A compiler translates the code written in high level language into a machine code. जो compiler है translate करता है high level language को machine code में. Interpreter is a computer program. ये भी एक computer program है जो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को जो भी लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में मशीन कोड में लाइन बाय लाइन. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise which is let's go. So A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. Here the first one is assembler is used to translate assembly language into machine language. Second algorithm is a step-by-step method to solve a problem in easy English. Compiler is a computer program that translates programs written into high-level language into machine code all at once. Fourth one, binary language is made up of two symbols, zeros and ones. Fifth one, a flowchart is a pictorial representation of steps for solving a particular problem. And the sixth one is interpreter translates code written in high level language line by line. Now let's move on to B exercise which is write true or false. So here the first one is flow lines are used to connect one part of flowchart to other. This one is true. Second, maintain the flowchart direction from top to bottom or left to right. Yes, true again. Third one, the algorithm should be terminate after a finite number of instructions. This is true. Fourth one, flowchart is a set of instructions given to a computer in English. This is false. Next, fifth one, if a flowchart is very complicated, it is better to use a rectangle. This is false. We have to use a connector. Now, sixth one, an oval symbol is used to indicate the beginning and ending of a flowchart. This one is true. Now, let's move on to C exercise which is take the right answer. Here the first one is which of the following is used for checking any condition in a flowchart? Decision box, input or output box, flow lines, process box. Here the correct answer is decision box. Second one, which type of translator translates the entire program code in machine code line to line? Compiler, interpreter, assembler or none of above? Correct answer is interpreter. Third one, which of the following is a set of instructions for solving a mathematical problem? Algorithm, program, flowchart or flow lines. Here the correct answer is algorithm. Now let's move on to the next question which is question number 4. So here the first one is which of the following is not a high level language? Python, binary language, Java or C++. Here the correct answer is binary language. Fifth one, binary language consists of letters, numerics, zeros and ones, A's and B's. So here the correct answer is
zeros and ones. So these are the answers that you have to write down. You have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.